તો આધ્યાત્મિકતા દ્વારા મહિલાઓનું સશક્તિકરણ થાય, મહિલા આત્મનિર્ભર બને, સમાજ અને પરિવારમાં સંસ્કારોનું સિંચન કરે, સ્વયંમાં દિવ્ય ગુણોને આત્મસાત કરે. તે માટે નારી શક્તિને ફરી ઉજાગર કરવા માટે એક શક્તિની જરૂર છે, અને એ શક્તિ છે આધ્યાત્મિક શક્તિ. આજે આપણે સર્વ એવા આધ્યાત્મિક શક્તિના સમાગમમાં બેઠા છીએ. આપણા સર્વની અંદર એ શક્તિઓ પડેલી છે, ફક્ત જરૂર છે એને જાગૃત કરવાની, અને એના માટે કોઈ એવા પ્રેરણા સ્ત્રોત વ્યક્તિની જરૂર છે. અને આજની આ સભાની અંદર આપણી વચ્ચે એવા વિભૂતિઓ ઉપસ્થિત છે જે એક એક આત્મા આપણને અનેક દિવ્ય ગુણો અને સંસ્કારોથી સુસજ્જિત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે. તો આજની આ સભામાં ઉપસ્થિત એવા આદરણીય, આજના પ્રશસ્ત અને આજના કાર્યક્રમને શોભાવનાર એવા આદરણીય શારદા દીદી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો હું આદરણીય શારદા દીદીને પણ નમ્ર અનુરોધ કરીશ, કારણ કે આજે સમાજની અંદર દિવસે દિવસે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મનુષ્યની મનોવૃત્તિમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે, અને આ મનોવૃત્તિ માણસને ક્યાં લઈ જશે એની કોઈ પણ કલ્પના કરી શકાતી નથી. આપણા સર્વના પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા પરમાત્મા પિતા, જેની કૃપા, જેની પ્રેરણા દરેક આત્મા ઉપર વરસી રહી છે, ત્યારે એવા પરમાત્મા પિતાની કિરણોરૂપી બાહોમાં આપણે બેઠા છીએ. એની શક્તિઓને આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ, અને એ શક્તિ સ્વરૂપા આ ભારત દેશની અંદર જ્યાં 108 દેવીઓનું પૂજન થાય, એનું ગાયન થાય છે, એ પરમાત્મા દ્વારા પ્રગટ થયેલી શિવ શક્તિઓ છે. અને જ્યારે જ્યારે સંસારની અંદર સંકટ આવે છે, દુઃખ આવે છે, ત્યારે દરેક મનુષ્ય આત્માઓ એ શક્તિનું પૂજન કરે છે, એ શક્તિનું ગાયન કરે છે. તો એ શક્તિઓ પ્રગટ થઈ ક્યાંથી? શિવમાંથી. અને એ શક્તિઓ જ્યારે પ્રગટ થઈ ત્યારે આ સંસારમાંથી અંધકાર દૂર થાય છે, અને એ અંધકાર છે અજ્ઞાનતાનું. વાસ્તવની અંદર આ દુનિયામાં એવા કોઈ રાક્ષસો નથી કે જે આજ સુધી આપણે ટીવી સિરિયલોમાં જોતા આવ્યા છે, પણ છતાંય આજે આ દુનિયા રાક્ષસોથી ભરેલી છે. એ કયા રાક્ષસો છે? એ છે માનવની અંદર પડેલી મનોવૃત્તિઓ, આસુરી અવગુણો. વાસ્તવની અંદર આ આસુરી અવગુણોને નાશ કરવાની જરૂર છે, અને એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે આપણી અંદરની શક્તિને જાગૃત કરીશું. તો એવી નારી શક્તિનો મિસાલ એવા આપણા આદરણીય દીદીજી આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો આજે આપણે સર્વ એકવાર એ દીદીજીનું કરતલ ધ્વનિથી સ્વાગત અને સન્માન કરીશું. હું એવા આદરણીય દીદીજીને અનુરોધ કરીશ, પણ એના પહેલા દીદીજી આપનો હું પરિચય આપીશ. થોડી ક્ષણો માટે આપ બેસશો. આપ આંબાવાણી સેન્ટર અમદાવાદથી પધારેલ છો. આપ આ આજના કાર્યક્રમની અંદર અમારા માનને ખૂબ જ સન્માન સહિત અમને આ પ્રેરણા અને શુભકામનાઓ આપવા માટે પધાર્યા છો. દીદીજી, આપના માટે તો શું કહું, આપ તો માસ્ટર જ્ઞાન સૂર્ય સમાન છો. આપની વાણીમાં તો સ્વયં સરસ્વતીજી બિરાજમાન છે. આપે તો અનેક દેશોનું પરિભ્રમણ કરી અને ભારતની દરેક નારીઓને સશક્ત બનાવી છે. એવી નારી શક્તિના સાક્ષાત મિસાલ સ્વરૂપા આદરણીય દીદીજી છે. સભાની અંદર દરેક પૂછી રહ્યા છે, ये कौन आया है, ये कौन आया है हमारे बीच में? હું ફક્ત એટલું જ કહીશ, रूप नुरानी है, परियों की रानी है, एक सुंदर कहानी है, वो दीदी जी हमारी हैं, वो दीदी जी हमारी हैं. आदरणीय शारदा दीदी जी. ओम शांति. सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें आप नारी को शक्तिवान बना रही है, और दूसरी तरफ सूर्य देवता अपनी भी सोलार पावर अनुभव करा रहे हैं.
दोनों की शक्ति हम सब अनुभव कर रहे हैं। मंच पर आसीन आदरणीय आशा बहन, माननीय दीपिका बहन, डॉक्टर ममता बहन कुछ समय में पहुंचेंगी, दीपिका बहन पहुंचेंगी, राजयोगिनी सरला बहन, इजू बहन, वर्षा बहन और आप समस्त मेरी अति स्नेही, अति प्यारी शिव शक्तियाँ। बड़ा सुंदर प्रारंभ में नृत्य देखा और उस नृत्य के बोल को अगर ध्यान से सुना हो तो आत्मसात करने जैसा था, जो कि आज का विषय है, नारी तू नारायणी। सिर्फ हम अपने आप से ये प्रश्न करें, सच में हे नारी, तू अपने नारायणी स्वरूप में है आज की इस घड़ी में? अपने आप से पूछिए। अपने अंतर में क्या उत्तर मुझे मिल रहा है? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का अमिष्ट पथ स्व की अर्वाचीन छवि नारी लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है। उसका साक्षात्कार क्या मैं नारी आज के इस पल में स्वयं में कर रही हूँ या समाज में, परिवार में, देश में और विश्व में आज भी नारी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए संघर्ष कर रही है? यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है? क्यों कर रही है? कोई सुनाएगा आप में से? उसका कारण क्या है? आप सब जानते होंगे, आधुनिकता की चकाचौंध ने उसको अपने वश में कर लिया है और वो आधुनिकता ने उसकी सत्व की जो छवि थी, सत्व का जो सौंदर्य था, जो नैतिकता थी, जो उसके अंतर की दूरदर्शिता थी, धैर्यता थी, उसकी सोच थी, उसकी दूरदर्शिता थी, वो जो सुलक्षणी थी, वो स्वरूप बदल गया है, वो प्रतिमा बदल गई है। दूसरी ही प्रतिमा दिखाई देती है और इसी कारण आज रोज समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ में
आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पिछले 4 महीनों से क्या क्या दृश्य, क्या क्या सुनने को आ रहा है। उस नारी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, उस नारी की हत्याएं कर दी जाती हैं, और उस नारी के साथ गैंग रेप किए जाते हैं। ना छोटी देखती हैं, ना युवा देखते हैं, ना वृद्ध देखते हैं। इस सब का कारण क्या है? यहाँ पढ़ रही थी, आध्यात्मिकता द्वारा नारी की सुरक्षा। कितनी भी सरकार नारी सुरक्षा के लिए कानून बनाए, क्या कानून नारी की सुरक्षा कर सकता है? तो हाथ उठाइए। कोई भी हाथ नहीं उठाता है। नारी स्वरक्षित है। हम अपने स्वमान में आ जाएं और अपने स्वमान को शायद अतिशयोक्ति नहीं है, भूल चुके हैं। रामायण के अनुसार चाहे रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी जो उसको टच कर सके, उसमें ताकत नहीं थी जो उसकी नज़र से नज़र मिला सके। भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण किया। इतनी भरी सभा के अंदर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उसके खुद के 5 पति, एक नहीं 5, कौन उसकी रक्षा के लिए आया? आगे आने की हिम्मत हुई किसी की कि अपनी बहू, बेटी और पत्नी को मैं बचाऊं तो सही? किसमें भी वो ताकत नहीं है। उसको भी रक्षित किया श्री कृष्ण ने। आज का समाज वही महाभारत का दृश्य दिखा रहा है, और इसके लिए आवश्यकता है हमें आत्म जागृति की, स्वयं के उस नारायणी स्वरूप में स्थित होने की। जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है, ससुराल में जाती है, उस समय कहा जाता है लक्ष्मी आई है। ऐसे ही कहते हैं, लक्ष्मी आई है, ऐसा कहते हैं, हाँ के ना? थोड़े दिन वो लक्ष्मी रहती है और कुछ समय के बाद उस लक्ष्मी के साथ व्यवहार कैसा होता है? लक्ष्मी कहाँ गई? हम अपने उन लक्षणों को चैतन्य करें। वर्षाबेन ने शुरू में कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत भूमि देव भूमि थी, सिर्फ वर्णन है, आज नहीं है। क्योंकि घर घर में नारी की पूजा नहीं है, समाज में नहीं है,
तो देवता कहाँ निवास करेंगे? गृहस्थ को आश्रम कहा गया। आश्रम पवित्र स्थान है। क्या आज गृहस्थ में वो पवित्रता है, वो शुद्धता है, वो निर्मलता है जो उसको आश्रम बनाए? पहले पहले नानी माँ, दादी माँ और माँ अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते थे। और आज क्या करते हैं? आज क्या करते हैं? मोबाइल, टीवी के सामने बैठ के भोजन खाना, टीवी के सामने बैठ कर के सब्जी काटना, टीवी के सामने बैठ के अनाज साफ करना। आंखें क्या देख रही है, मन क्या सोच रहा है, हाथ क्या काम कर रहे हैं, कौन से वाइब्रेशन उस अन्न में जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। हमने अन्न में कौन से वाइब्रेशन डाले हैं, तो खाने वाले के अंदर के विचार भी वैसे ही होंगे। दोष समाज का नहीं, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। मेरी सोच, विचार, वाणी, व्यवहार समाज को बदल सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है। उसका आधार मैं हूँ। हम अपने उस नारायणी स्वरूप में आ जाएं, अपने लक्ष्य को अपने सामने लाएं। घर घर को मुझे स्वर्ग बनाना है। घर घर में सुख, शांति और आनंद रखना है। लेकिन मेरी चाल चलन, पहनावा, व्यवहार क्या है? हमें बच्चों से प्यार से बैठ कर के बात करने की फुर्सत है। बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ के आए, आपको क्या होमवर्क मिला? शांति से बैठ के पूछती हूँ। उनको अपनेपन की भासना देती हूँ, या मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज इतना ही है, सुबह उठाया, नाश्ता तैयार किया, उसको बैग दिया, जाओ टाइम पर स्कूल, स्कूल से आया, भोजन किया, उसकी ट्यूशन क्लास है, जाओ ट्यूशन में, आया, होमवर्क किया, खाना खाया, सो गया। संडे का दिन हुआ, बच्चे अपने दोस्तों में बिजी या घर में है तो मोबाइल में बिजी हो गए। उस बच्चे का एक्सपोजर, जो पहले गली में जाकर के गुल्ली डंडा खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते थे, आज मोबाइल में ही गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर में ही खेल रहे हैं। उनका संसार सिर्फ इतनी सी स्क्रीन रह गया है। एक माँ होने के नाते, नारी होने के नाते मैं उनको कौन से संस्कार दे रही हूँ? आज 23-24 साल के युवा लड़की के प्रेम में फंसते हैं,
उसको यूज़ करते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके जो उसका नामो निशान मिट जाए कर देते हैं। क्या संस्कार दिए उसको माँ ने। चाहे वो लड़का है या लड़की, आज के दिन भी माताएं लड़कियों को कहती हैं टाइम से घर आ जाना। कभी बेटे को कहा बेटा टाइम से घर आ जाना? क्या सारे बंधन, सारे डिसिप्लिन बेटी के लिए है? वैसे तो आज बेटी को भी नहीं कह सकते टाइम से घर आ जाना। हमारे समय में हम शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकते थे, नहीं जाने देते थे। फिल्मी गीत हमको नहीं सुनने देते थे, फिल्म में नहीं जाने देते थे। टीवी तो उस समय था ही नहीं। पहले मैं स्वयं उन श्रेष्ठ लक्षणों को धारण करूं तो हम सोच सकते हैं कि हम समाज को, परिवार को और देश को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये भारत की धरती देवभूमि, स्वर्ण भूमि थी। वो दैवी संस्कार, वो स्वर्णिम संस्कार अपने में चाहिए। आज क्यों हम उन नैतिकता को, उस चरित्र को, उन मूल्यों को अपनाने में पीछे हटते हैं? कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये पार्टीज में नहीं आती है, नाइट क्लब्स में नहीं आती है, क्लब मेंबर नहीं बनती है, क्या वही मेरा स्वमान है? क्या वो मेरा स्टेटस है? नहीं, कदापि नहीं। आज भले मुट्ठी भर नारियां समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। एरोप्लेन की पायलट भी बन गई, स्पेस में रॉकेट में भी गई, ट्रेन की ड्राइवर भी बन गई, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गई, सीईओ भी बन गई, चेयरमैन भी बन गई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी बना ली। लेकिन उससे क्या मैं अपने शुद्ध, निर्मल, श्रेष्ठ स्वमान में हूँ? और दूसरी तरफ उतना ही नारी का शोषण, उतना ही नारी का अत्याचार, उतना ही उसके साथ विभत्स व्यवहार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे इस संस्था में 70,000 से अधिक बहनें समर्पित हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप उनको भेज दीजिए, वो अकेले जाएंगी, निश्चिंत होके, निर्भय होके, शिव शक्ति बन करके। किसकी हिम्मत नहीं है जो आंख उठाकर उसकी तरफ देख सके। आप बहनों के पहनावे से समझ सकती हैं। ये उस आध्यात्मिक शक्ति, उस ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके अंग अंग से वो शुद्धता, वो पवित्रता की खुशबू है। अगरबत्ती जलती है तो खुशबू देती है।
जब व्यक्ति अपने स्व के देह अभिमान का, अपनी बुद्धि के अभिमान का, अपने दैहिक सौंदर्य का, अपनी समझदारी का, अपनी योग्यताओं का त्याग करता है और ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को स्वयं में धारण करता है, दैवी मूल्यों को धारण करता है, उसकी जो प्राप्तियां हैं, उसकी दृष्टि में, उसकी सोच में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में महसूस होती है, सामने वाला स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। आज चारों तरफ नफरत का वायरस, घृणा का वायरस, बदले की भावना का वायरस, आलोचना का वायरस, तेरे मेरे का वायरस, किसको कैसे नीचे गिराएं उसका वायरस फैला हुआ है। चारों तरफ असंतुष्टता, इच्छाएं दिखाई देती हैं। आप अपने आप से ही पूछ लीजिए, आप जो आज इस स्थान पर हैं, जो कुछ भी आप बनी है, कैसे बनी है? किसने आपको बनाया नहीं है? आपने स्वयं को बनाया है। स्वयं को आपने देखा है। फिर भी आज के दिन आप अपने से पूछिए, मैं रियली क्या हूँ? मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? अभी 2 दिन पहले एक बहन आई और वो कहती है, आप मुझे बताइए कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया है। हार्डली 25-26 वर्ष की थी। मैंने कहा, आप क्या समझती हैं? कहती है, मुझे पता नहीं है मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। वो अपनी जीवन की नैया को कहाँ ले जाएंगी? सामने लक्ष्य रूपी दर्पण ही क्लियर नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे किसमें खुशी मिलती है? मुझे किसमें आनंद मिलता है? मुझे किसमें सुख मिलता है? मैं अपने आप से पूछूं और अपने इस जीवन की यात्रा को अति सुखदायी बनाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना है? हम 6 बातों को अपने में देखें। सबसे पहली बात, अपनी आंतरिक शक्तियों को पुनर्जागृत करने के लिए अपने आत्म स्वमान और स्वमान में स्थित होने के लिए एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को समझें और ये समझ हमारे परिवार में एक प्यार की खुशबू फैलाएगी। आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिलीज को ब्रेक डाउन कर रही है। परिवार में आपसी प्यार और स्नेह की कमी दिखाई देती है। दूसरी बात, निस्वार्थ भावना हो। निस्वार्थ भावना हो। किसको भी सहयोग दिया, मदद की, उसके बाद कोई अपेक्षा नहीं रखी जाए।
कि रिटर्न में ये भी मुझे करेंगे। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों से अपेक्षा होती है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी की, उनको सेट किया, किस लिए कि ये भी वृद्ध अवस्था में मेरी सेवा करेंगे। उनसे ये आशा रखना सबसे बड़ा स्वयं को दुखी और अशांत करना है। इस भावना से कभी नहीं करना। संबंधों में मधुरता हो। आज मीठा बोलना बहुत मुश्किल लगता है, परस्पर मधुर व्यवहार रखना बहुत मेहनत का काम है। किसने मुझे एक शब्द कह दिया, मैं 4 शब्द सुनाए बिगर नहीं रहूंगी, और वहाँ ही खड़ा हो जाएगा। क्या क्या खड़ा हो जाएगा? देखो मालूम है, बोल रहे हैं महाभारत। बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अंतर में शक्ति नहीं है। तब कहा जाता है, if you are not able to give anything sweet, at least you can speak sweet, it costs nothing. अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम मीठे 2 बोल तो बोलिए। आपकी मीठी वाणी उसके सारे जीवन को परिवर्तन कर देगी। आप प्रैक्टिकल में ये अनुभव करके देखिए। कितनी भी किसकी आपसे दुश्मनी है, शत्रुता है, कितना भी वो नाराज है, आप एक बार उसको प्यार से बुला लीजिए, वो आपके पांव पड़ जाएगा, आपको नतमस्तक हो जाएगा। ये आपकी महानता होगी। लेकिन अभिमान, अहंकार मुझे मधुर नहीं बनने देता। वो मेरी दिव्यता को, दिव्य शक्तियों को नाश कर देता है। चौथी बात, भावनाओं का सम्मान करें। जिसकी जो भावना है उसकी भावना को सम्मान दें, उसका तिरस्कार नहीं कीजिए। भगवान के लिए भी कहा जाता है, भगवान भावना का भूखा है। वो आपके दर पर दौड़ता दौड़ता आ जाएगा, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। हम औरों के मनोभावों को समझकर, इससे पहले कि वो कुछ कहे, हम उसकी भावना को समझ जाएं। जब मन के अंदर वो शुद्धता है, वो अपनेपन की भावना है, तो ये समझना मुश्किल नहीं है। 5वीं बात, अपनेपन का ममत्व दे। अपने में फंसाए नहीं, रहे अनासक्त। मोह नहीं चाहिए, लेकिन एक आत्मीयपन से अपनत्व की भावना जागृत करें। एक आध्यात्म शक्ति का उनको अनुभव कराएं। और लास्ट में खुशी और संतोष, कि मुझे सबको खुशी और संतोष देना है। ये नहीं सोचूं ये मुझे कभी खुशी नहीं देता है, ये मेरे को हमेशा दुखी करता है, ये कभी संतुष्ट नहीं रहता है, सदा कहता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसको कितना भी दो, ये संतुष्ट होने वाला नहीं है।
विज्ञान इतने बड़े बड़े उपग्रह छोड़ता है और हम पूर्व ग्रहों को नहीं छोड़ते हैं। वो पूर्व ग्रह यहाँ ऐसे स्टोर किए हुए हैं, जब जब वो सामने आएगा वो सिर उठा लेंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ उसको। बदला ना लीजिए, बदल कर दिखाइए। तो हम अपने उस नारायणी स्वरूप में आने के लिए 6 बातों को धारण कर लें। सबसे पहला, अपने स्वस्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं कि मैं एक अति शुद्ध, पवित्र, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तीसरा, आत्मा के स्वलक्षण सत्व है। सत्व, रजस और तमस। आज सब तमस में है, रजस भी नहीं है। और वो सत्व लक्षण सतो प्रधानता के हैं। तो 7 लक्षणों से युक्त मैं एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ, जिसके 7 गुण, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान अर्थात समझ, शांत स्वरूप, जिसके मन के विचारों में सदैव शांति है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हर एक चाहता है शांति। बार बार कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति में रहने दो। अशांति किसको पसंद है? जोर से कोई बोलता है तो शांति से बोलो ना। शांति मेरा गुण है। तीसरा, प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे से कोई प्रेम से बात करता है, मुझे कितना अच्छा लगता है, कितना मुझे सुकून मिलता है, कितनी मुझे खुशी मिलती है। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस स्वरूप में आ जाऊं। चौथा, आनंद स्वरूप हूँ। आनंदित वातावरण, खिले हुए पुष्प, सुगंधित हवा, खुला आसमान कितना खुशनुमा लगता है। जहाँ अशांत मन भी शांत हो जाता है। और मेरे भी चेहरे पर अगर खुशी होगी, आनंद होगा, कोई कितना भी दुखी हो करके आएगा, मेरा चेहरा देख करके खुश हो जाएगा। कितनी आनंद में है, एक बार तो वो ये सोच लेगा। इस पर एक प्रैक्टिकल बात सुनाती हूँ। मेरा समय तो हो रहा है। हमारी चीफ दादी जानकी थी। आज से मैं समझती हूँ 15-20 वर्ष पहले पोलैंड में बहुत रॉयट्स हो गए थे। लोगों को ब्रेड का चौथा पीस लेने के लिए भी घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब चौथा पीस ब्रेड का मिलता था। तो वहाँ की सरकार ने विश्व के सभी धर्म नेताओं का एक सम्मेलन किया वहाँ की शांति और व्यवस्था को बनाने के लिए। ब्रह्मा कुमारीज के वहाँ से हमारी दादी जानकी गई थी। मंच पर सभी भाई थे, सिर्फ एक महिला दादी जानकी थी। सभी ने अपने अपने धर्म की 2-2 मिनट प्रेयर की और जानकी दादी ने ओम शांति बोल करके
शांति और खुशी क्या होती है 2 मिनट में सुनाया। और जैसे ही वो बैठी, सभा से एक व्यक्ति उठा और कहा, मैं पिछले 4 घंटे से इस महिला को देख रहा हूँ, बड़ी खुश बैठी है, बड़ी आनंद में बैठी है, बड़ी शांति से बैठी है, और हम इतने दुखी हो रहे हैं। मेरा इनसे प्रश्न है, क्या हमको देख करके इनको दुख नहीं हो रहा है? दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, आप 4 घंटे से क्या सोच रहे हो? ये बड़ा खुशी में है, आनंद में है, शांति में है। अगर मैं भी आप जैसी दुखी होकर मुंह लटका कर बैठी होती तो आप भी क्या सोचते, मेरे जैसी ये भी कोई दुखियारी होगी। मैं आपको खुशी, शांति और आनंद देने आई हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तो हमारा चेहरा औरों को आनंद देने वाला, खुशी देने वाला है। 5वीं बात, शक्ति स्वरूप। नारी तू नारायणी है, नारी तो शक्ति है, ऑर्डिनरी शक्ति नहीं है, तो शिव की शक्ति है। शिव का नारी के बिगर कुछ नहीं चलेगा। उसको नारी शक्ति को अपने साथ लेना ही होगा, तब वो नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो हम शिव शक्तियाँ हैं, अपने उस स्वरूप में आ जाएं। 3 विशेष देवियाँ हैं। इस दुनिया के अंदर अधिक से अधिक एजुकेटेड पुरुष हैं, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती माँ। दैहिक दृष्टि से पुरुष शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति की देवी कौन है? बोलो, बोलते ही नहीं है। दुर्गा माँ। धन कमाने का कार्य पुरुषों का है, लेकिन धन की देवी लक्ष्मी माँ है। अपनी इस अनादि प्रतिमा को अपने अंदर धारण कर लीजिए और बन जाइए नारायणी। और लास्ट, पवित्रता। अपने मन, वचन, कर्म से हम अपने को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। स्वदेश कौन सा है? जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है तो कहता है इस दुनिया से जाऊं। तो किसी शायर ने कहा, दिल नहीं लगता है तो कहते हो मर जाऊं यहाँ से, लेकिन अगर मरकर भी जी ना लगा तो फिर कहाँ जाओगे? हमारा असली घर इस 5 तत्वों की दुनिया से पार वो शांति धाम है। वो मेरा स्वदेश है, जहाँ शांति ही शांति है। अपने उस स्वदेश को याद करिए और स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न कर हम अपने आप को वो शक्ति स्वरूपा, वो नारायणी बनाए जिसका स्वरूप आज भी हम गायन करते हैं, आज भी हम देखते हैं। अपनी खोई हुई संस्कृति को, अपने खोए हुए संस्कारों को पुनर्जागृत करें। तो ये ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही कार्य कर रहा है, जन जन में यही जागृति फैला रहा है। जो इस मेले में भी रात के समय में आप आएंगे तो देखेंगे क्या खूबसूरत नव दुर्गा की झांकी है।
जो घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठी है, आंख भी नहीं झपकती है, वो ईश्वरीय शक्ति, वो अध्यात्म की शक्ति उनके मन को एकांत में, एकाग्रता में ले जा करके प्रैक्टिकल में उन्हीं गुणों का स्वयं में आह्वान कर उस स्वरूप का साक्षात्कार कराती है, जो देखने वाले कई बार तो कहते हैं ये मूर्तियाँ आप कहाँ से लेकर के आए हो, कौन से कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया है। वो जड़ समझते हैं चैतन्य को, उसका आप अवश्य लाभ लीजिए। और इसके पश्चात आप अपने मैसाना के ब्रह्मा कुमारी सेवा स्थान पर जाकर के और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, तो मैं समझती हूँ आप भी वो शिव शक्ति बन करके स्व के अधिकारों और कर्तव्यों की स्वयं रक्षा करते हुए अपने जीवन को अलौकिक व दिव्य अवश्य बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। आपके मधुर और अमूल्य वचनों ने पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने सचमुच नारी तू नारायणी शिव शक्ति के अस्तित्व का दर्शन करा दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम दीदी जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें बताया है 6 बातें जीवन में धारण करने के लिए, उसके सार रूप में अगर देखें तो ईश्वरे दरेक सद्गुणो नारीनी मूर्तिમાં મૂકેલા છે, પરંતુ જ્યારે તેમાં કોઈક અવગુણ પ્રવેશ કરી જાય છે ને, ત્યારે રામાયણ અને મહાભારત જેવા શાસ્ત્રોની રચના થઈ જાય છે। રામાયણની ઉત્પત્તિનું કારણ શું છે? આવા યુદ્ધ, સંગ્રામ અથવા વનવાસ થતા જ નહીં, એક સુખી અને સંપન્ન પરિવાર હતો। પરંતુ યાદ રાખજો બહેનો, માત્ર અને માત્ર એક મંથરાના કારણે જ આખું રામાયણ બની ગયું છે। આ સુખી પરિવારની અંદર આગ મૂકવાનું કામ એ મંથરાનું છે, પરંતુ ક્યાંક સંબંધોમાં મૂલ્યો ખૂટી જાય છે ને, ત્યારે આવા રામાયણની અને મહાભારતની રચના થઈ જાય છે। તેનું મૂળ કારણ અંદર ખૂણામાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ મંથરા બેઠી છે, અને તપાસજો। અને આજે આપણે સર્વ સાથે મળીને એવો સંકલ્પ કરીએ અને આજે ને આજે મંથરાનો આપણે નાશ કરીએ। आदरणीय दीदी जी नो खूब खूब धन्यवाद। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने नारी को बनाया। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाती हूं। ऐसा नहीं कि नारी को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ होगा, सच तो यह है कि वो बहुत पछताया होगा। कब? उसका एक एक जादू किसी ने, ये नारियों ने चुरा लिया और वो जान भी न पाया, और वो जान भी न पाया। ए नारीनी आ सभा छे, जे नारीनी अंदर परमात्मा ए दरेक सद्गुणों ने मूकेला छे, परंतु फरी एने उजागर करवानी जरूर छे।